Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF, ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can contact us our mail ID, that is sbscholarsacademy@gmail.com. We are also providing the study material such as previous year question bank, practice set question bank and quick revision note. For this you can mail us on our mail ID. Today we will discuss about the protein. It is a part 1. So it is a very vast topic. So still we are just covering the some important topic, some important quick points which is important for the exam point of view. So if you are not read in some text reference book, so firstly I would like to suggest you that you kindly prefer a textbook for the major concept clearance of the these macronutrients such as carbohydrate, protein and other, which we will update in further in future. So let's start with the protein. As we discuss about carbohydrate, so now today we will discuss about the protein. की protein क्या होता है? Protein are very large organic compound. Protein like carbohydrate, fat contain, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उसी तरह प्रोटीन में भी ये तीनों कंपाउंड होते हैं. In addition, protein content about 60% of nitrogen. So what is the difference? What is the additional in protein? That is the 16% nitrogen, which is their unique feature, जो कि इसका एक यूनिक फीचर होता है. Distinguish them from carbohydrate and fat, जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट से इसको अलग बनाता है. So अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि what is the difference in between composition of protein, carbohydrate and fat, so that is 16% nitrogen are present in the protein, जो कि कार्बोहाइड्रेट या फैट में नहीं होता है. प्लांट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन इन नेचर. अगर हम बात करें कि प्रोटीन्स के नेचर का प्राइमरी सोर्स क्या होता है, दैट इज द प्लांट. कैसे? Protein are synthesized by the plant from the nitrates and the ammonia in the soil. So basically जो soil में nitrate और ammonia present होते हैं, protein वहाँ से synthesized होता है plant के through. So this is a primary source which may be asked in the exam. Now all proteins in our body and food are built from basic unit or compound known as amino acid. We will in future make a video in detail about the amino acid, because it is one of the important topic and it is a little bit vast, so we have to make it in separate video कि what is amino acid, what is the type, there are some essential, some non essential, so we will update you with in future. तो बेसिकली अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो भी बनता है, उसकी बेसिक यूनिट कहें या बेसिक कंपाउंड कहें, वो क्या होता है, उसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं. दैट इज डिनोटेड विद द डबल ए. ओके. अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड फ्रॉम प्रोटीन बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. बेसिकली जो अमाइनो एसिड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड से होता है विद जॉइंट्स कार्बोक्सिलिक कार्बन, जिसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है वन ऑफ अमाइनो एसिड विद नाइट्रोजन ऑफ अनदर. Now protein exists in basically two form, that is the fibrous and globular form. What is the fibrous protein? Appear in structure elements such as the collagen of connective tissues. तो basically अगर हम जब भी fibrous protein की बात करते हैं वो किस में होता है, that is the collagen of connective tissues, myosin of muscle tissues and keratin of hair. So this is the इम्पॉर्टेंट कि अगर हम टिश्यू की बात करें तो प्रोटीन जो होता है वो कोलेजन के फॉर्म में होता है. अगर हम मसल की बात करें तो ये यहाँ पे मायोसिन की फॉर्म में होता है, और अगर हम हेयर की बात करें तो ये यहाँ पे केराटिन के फॉर्म में होता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रोटीन जो होता है कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन या साइट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो यू कैन राइट और लर्न अबाउट दिस. When we are talking about the globular proteins, कि globular proteins क्या होते हैं, they are soluble and occur in tissue fluids. So basically ये कहाँ पे पाए जाते हैं, tissue fluids में पाए जाते हैं. They include casein में पाया जाता है, egg albumin, albumins and globulins of blood, plasma and hemoglobin. तो ये एक तरह का लिक्विड ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो कि टिश्यू फ्लूइड्स में बेसिकली पाया जाता है, और उसकी जो मेजर साइट्स होती है दैट इज़ द एग एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूमिन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म. दे मोस्ट ऑफ द इंटरसेलुलर एंजाइम. अगर हम कॉन्जुगेटेड फॉर्म की बात करें तो ये बेसिकली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, जो कि बॉडी के अंदर होते हैं. Now when we are talking about the classification of protein in a very short
वे। तो प्रोटीन को न्यूट्रिशनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ अ सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड, और हाँ कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पार्शियली प्रोटीन भी होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव प्रोटीन की बात करेंगे। और जो क्या कहता है कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पार्शियली होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द basically sources of the amino acids. So when we will make about the amino acid video, we will cover in there. सिंपल प्रोटीन यील्ड ओनली अमाइनो एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। सो बेसिकली सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जो कि केवल अमाइनो एसिड्स के हाइड्रोलाइसिस के थ्रू होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो होते हैं जो सिंपल प्रोटीन्स के साथ साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस से भी बनते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिराइव प्रोटीन्स, दे आर प्रोटियोजेस, पेप्टॉन्स एंड पेप्टाइड्स फॉर्म इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के स्टेजेस पे ये कुछ फॉर्मुलेशन होती है कुछ कंपाउंड्स की, दैट इज़ द प्रोटियोजेस, पेप्टॉन्स एंड पेप्टाइड्स। तो ये इनको हम डिराइव प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ना अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि सिंपल प्रोटीन क्या होता है या कंपाउंड प्रोटीन क्या होता है, तो सिंपल प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन्स, ये कुछ नेम्स हैं। दे मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। यू कैन ऑल्सो रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. Prolamins and albuinoids are simple protein. Albumins and globulins are soluble in water solution, are present in animal fluids. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन्स और ग्लोब्यूमिन्स की, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली एनिमल फ्लूइड्स में। जैसे अगर हम बात करें मिल्क, ब्लड और प्लाज्मा, तो इसमें कौन से प्रोटीन होते हैं, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो दे मे बी आस्क्ड इन दिस मैनर कि मिल्क, ब्लड, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है, तो दैट इज़ द सिंपल प्रोटीन। दोज विच आर लेस सॉल्यूबल आर प्रेजेंट इन टिश्यूज़। अब ये सॉल्यूबल सिंपल प्रोटीन होते हैं और जो लेस सॉल्यूबल होते हैं वो बेसिकली किस में प्रेजेंट होते हैं, वो मसल्स, प्रोटीन और मायोसिन में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किससे बनता है, जो कि सिंपल प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस से मिलके बनता है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। तो नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइपोप्रोटीन का, जो प्रोटीन और लिपिड से बनता है। तो प्रोटीन तो एक इसका पार्ट हो गया, बट लिपिड इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोटीन, सो इट इज़ known as a non substances of the protein found in blood plasma such as LDL, जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसको हम कवर करेंगे इन डिटेल, दैट इज़ द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कि जैसे कि HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, और जो VLDL होता है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ना और किस में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द न्यूक्लियोप्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो कि बेसिकली कहाँ पाया जाता है, सेल्स में। म्यूकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड्स फॉर्म इन गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन बेसिकली म्यूसिन, जो कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन में पाया जाता है, जो कि बेसिकली कहाँ होता है, दैट इज़ द इन म्यूसिन। फॉस्फोप्रोटीन क्या होता है, दैट इज़ द प्रोटीन एंड फॉस्फोरिक एसिड। प्रोटीन और फॉस्फोरिक एसिड जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फॉस्फेट प्रोटीन, और ये बेसिकली किस में पाया जाता है, मिल्क में, फॉर एग्जांपल केसीन। मेटालोप्रोटीन्स क्या होता है, जो प्रोटीन और मेटल से मिलके बनता है उसको हम मेटालोप्रोटीन्स कहते हैं, और बेसिकली ये फेरेटिन या हेमोसाइड्रिन, ये एक आयरन का फॉर्म होता है, उसमें पाया जाता है। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोटीन. We will further cover the other part of the protein in our next video. Thank you so much for watching. If you have any query, you can ask in the comment box. Keep learning, keep healthy, keep watching.